Hello viewers, hope you're doing well. This is me Priya and I'm super excited to welcome you all to this gem of a show called Zee Connect. Well, I believe what you do today can improve your tomorrow. And we want your tomorrow to be filled with happiness, lots of excitement, entertainment and inspiration. So why are we still waiting? Get on the bus and let's begin. We got to meet Anand L Rai, an exemplary storyteller with unmatched passion, vision and creativity. His films like Tanu Weds Manu and Ranjana have dazzled audiences because of their unique storylines and realism. What brings him to Dubai though? Let's check it out together. Anandji, thank you so much for joining us on Zee Connect today. Welcome to Dubai. Pleasure, thank you so much. We were just talking about the heat here. Right. Is it very bad? No, the excitement is so much that I can't feel any kind of temperature around me, and I'm so much into the film right now. So Yeah. it's another kind of excitement. So even on the shoots when I'm shooting in the summers, I don't feel the heat. I understand. So we'll get to the excitement about the movie and about the movie itself in a bit. Let's talk a little bit about your journey. So your journey has moved, you started with television and then moved on to making films. So Right. you've seen the best of both worlds. Which of these two mediums do you feel gives you more creative freedom? See, every medium has got its own value or an asset. There's a different kind of viewers you get when you're doing television, and there's different kind of audience you get when you're doing cinema. But end of the day, what is similar between both, that you have to touch the heart of your audience. So for me, nothing changes. I have to be as honest as I am, whether I'm doing films or television. So that technically, yes, technically you have to learn a different form of storytelling when you, like how I moved on from television to films. There was a kind of sabbatical I took, a self-graduation from television to films. So that is technical. Otherwise, one thing remains the same, that it's all about emotion, how you put it in front of your audience. Right. Tell me, the world is talking about Hollywood, world cinema. You are very much rooted still and you like to tell people stories of small towns in India. Do you do that on purpose? Not on purpose. I think I was born and brought up in a middle class family, a very middle class Indian family. So I feel very comfortable when I pick stories from my roots. So, and that is the only way I can stay true to what I'm doing. Another thing which stayed with me was when the great maker Satyajit Ray ji said that way to global is through regional, you know. So I think that is the crux of it. The more regional or the more if you give your own slice of thing in the story, there are bright chances that you go global, you get more audience. So tell us more about Raksha Bandhan. It's all set to release around the festival time. We've seen the trailer, it looks great. The sisters, Akshay of course, Bhumi as well. Tell us more about it. See, every time you get down on floor to tell a story, you should have a reason. You should be there with something. You should have a strong reason. As a maker, as a person, as an individual, why you want to go for it. And I had a very strong reason for making Raksha Bandhan, because the idea struck us when we were going through this pandemic thing, and we were all locked in our houses, our homes, and with our families, and there was a certain kind of uncertainty around us. We were scared. There was a certain kind of fear. The only thing that was constant with us was family, you know. And we realized the real value at that moment. End of the day, how much money coming into my bank is not important. What is important
people with me at that moment, caring. And I said, it's a great time to think of a story like Raksha Bandhan, to think about a relationship which has not been explored in the last couple of decades. And what other relationship you can look for when you are looking for a purity? So I said, let's go for it. Let's enjoy those Indian values. Let's talk about those family things and give your audience a good 2 hours of bonding time. Tell us about working with Akshay after Atrangi Re. It's been a fabulous journey. I have been able to understand the man so well. I think it's a very mutual thing. The best part is when a director and actor get together is how much we can share with each other. That's the crucial part. Are we able to share with each other our weaknesses? I think that has gone right between me and Akshay sir, where we have been able to talk anything under the sun. And I can say that we know each other very well. That's why I'm able to extract the kind of thing which, I'm very happy about. And yes, I think that kind of bonding between me and him, you will be able to see much more in Raksha Bandhan. And what was it like working with the sisters? We've seen, I think, Smriti and Sehjmeen have made their debut in this movie. Yes. Then there is Sadia and then Deepika. They have done a few of the films. But what was very important for Raksha Bandhan was these 4 sisters. So when I was talking about purity or honesty, you need to do your bit for the story rather than for yourself. The characters which can straight away on the first look get into that connect with the audience. So I think these 4 girls have done a brilliant job in that. Wonderful. Thank you so much, Anandji. It's been a pleasure talking to you. Thank you. Thank you very much. I will take you to meet the perpetual Khiladi of Bollywood and my most favorite film star after this short break. Do stay connected. Welcome back. From being one of the fittest actors to performing his own stunts, Akshay Kumar has very deservingly earned the title of Khiladi. This time we met him along with his 3 beautiful real sisters who were in Dubai to promote their upcoming film Raksha Bandhan. To watch their chemistry and to know more about the film, join me. Hello and a huge welcome to the team of Raksha Bandhan. Welcome to Dubai. Welcome to Zee Connect. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके अक्षय और 3 बहनें यहाँ पे, चौथी बहन नहीं आ पाई. उसका पासपोर्ट नहीं था. Nevertheless, 3 बहनें यहाँ पे हैं, सादिया, स्मृति, सहजमीन. Very happy to have you. I hope she gets a golden visa. Right. So Akshay, we'll start with you. We've heard that this has been your most favorite film so far to shoot. Why is it so special for you? एक तो देखिए कि क्या है, बहुत सारी फिल्में की मैंने अपने करियर में, लेकिन कभी बहन भाई के रिश्ते पे कोई फिल्म नहीं की. बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन बहन भाई के रिश्ते के ऊपर मुझे लगता है बहुत पुरानी एक फिल्म थी तपस्या करके, वही बनी थी. उसके बाद कोई नहीं बनी. हस्बैंड वाइफ पे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे, बाप और बेटे का रिश्ता, माँ के साथ रिश्ता, उस पे सब पे बनता है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते पे कभी फिल्म बनी नहीं. बहुत पहले बनी थी जो भी है. तो ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही. और ये एक फिल्म मैंने 10 मिनट में हाँ बोल दी थी. जब इसकी कहानी सुनी थी तो 10 मिनट में मैंने राय साहब से कह दिया था, डायरेक्टर से, कि मेरे को ये फिल्म करनी है. एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव फिल्म, और एक ऐसी फिल्म है जो कि प्रॉब्लम के बारे में बात करती है, जो कि दहेज का प्रॉब्लम है. और कमाल की बात यह है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि सल्यूशन भी बोलती है. ये फिल्म आपको सल्यूशन भी बताती है कि सल्यूशन है क्या, करना क्या चाहिए, जब ऐसी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए. तो बहुत ही, और जब मैंने ये फिल्म देखी, मैंने तो ये फिल्म 2 बार देखी हुई है अपने, एंड मैं अमूमन इतनी जल्दी रोता नहीं हूँ, लेकिन ये फिल्म इतना हंसाती है
और फिर रुलाती है और फिर हंसाती है। राइट, सो बहनों पे आ जाते हैं। सादिया, लेट्स स्टार्ट विथ यू। टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। It's a very special character for me because I can pretty much relate to this character as much as I think everyone can, because we all have similar love for our siblings. मेरी लाइफ में मेरे भाई बहन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, और गायत्री जो मेरा कैरेक्टर है उसके लिए उसके भाई बहन सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। तो आई थिंक दिस कैरेक्टर इज समवन जिसके साथ सब रिलेट कर सकते हैं, हर लड़की रिलेट कर सकती है। कमिंग टू यू स्मृति, फर्स्ट मूवी, Yes. टेक मी थ्रू व्हाट वाज द ऑडिशन प्रोसेस लाइक? जब मिला तब क्या फीलिंग थी, किसको जाके बताया? ऑनेस्टली मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सन हूँ, एज इन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके नहीं ज़ाहिर कर पाती हूँ। पर जब मुझे पता लगा, मैंने ऑडिशंस दिया लॉकडाउन के बीच में ही, और मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने ऐसा कुछ ऑडिशन दिया था, और मुझे 2-3 महीने बाद कॉल आया दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस, एंड आई गॉट टू नो दैट कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने को मिलेगा। तो एक समय तक तो मुझे समझ नहीं आया आज दिन कि आपने क्या बोला कि किसके साथ है। तो ही वाज लाइक कि यू गेट टू वर्क विद अक्षय सर, एंड ऑफ कोर्स इट्स डायरेक्टेड बाय मिस्टर आनंद एल राय। सो आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत ही स्टैटिक मोमेंट था, और काफ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इमोशंस क्या चल रहे थे, मैं क्या फील कर रही थी, बट ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था। एंड जब मैं ऑडिशन वगैरह पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने अपने घर पे नहीं बताया था कि डिटेल्स नहीं दी थी। आई जस्ट टोल्ड देम आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अ मूवी एंड आई एम गोइंग फॉर द फाइनल ऑडिशंस, और आई जस्ट वांटेड कि एक वो कॉन्फर्मेशन आ जाए, एंड देन आई विल टेल देम, एंड यू नो so when I came back then I got a call that you know you've been logged and all of that. So मैं बाहर से एक स्वीट का डिब्बा लेके गई अपने घर पे, और I touched both of my parents। मतलब मैं ये सब करती नहीं हूँ, but I did that। और ये तीनों को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये लोग बहुत तीनों कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है आज। तो बस थैंक यू सर। बट मतलब तब तक यू हेल्ड इट विथ यू, किसी को बताया नहीं? या आई एम अ पर्सन, मैं रख लेती हूँ काफ़ी बात, तो किसी को सीक्रेट कुछ शेयर करना हो तो सहजमीन, वाज इट द सेम फॉर यू? मतलब छुपा के रखी थी बात? पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी फिल्म है, और मेरे को याद है कि मैंने चोटी करके तेल लगा के ऑडिशन बनाया था, और मेरा कैरेक्टर जो था वो टॉम बॉय था। और इसके कैरेक्टर का एक ही लाइन में मतलब फिल्म के अंदर है, शी इज अ टॉम बॉय। तो मैं बोलता हूँ सनी देओल मत बन बेटा, सनी लियोनी बन। सो बेसिकली वो सनी देओल की फ़ैन है, तो बहुत मज़ा आया। ओनली आनंद सर कुड इमेजिन मी इस रोल में, बट या। Nice. Actually, tell me, is this movie also special for you because your sister is also a co-producer in it? And did you, like, while shooting, you felt some kind of nostalgia about your bond with her? I'm actually, to be honest, I'm waiting for her to watch this film. But she hasn't seen it yet. No, she's not seen a frame on yet. Okay. I just want to, actually, when I want to watch the film, I want to watch it in a very different way. I want to sit एकदम साइड में जाके and look at her, keep on looking at her. Like everybody else, मेरा भी बहुत ही अच्छा रिश्ता है अपनी सिस्टर के साथ, लेकिन मैंने कईयों को देखा है जब वो बात करते हैं वो बताते हैं कि हमारे ब्रदर सिस्टर में झगड़ा होता है, और होना चाहिए भी, लेकिन मेरे उसमें नहीं रहा है। मेरे उसमें मुझे याद है जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो हमें यही सिखाया गया था कि बेटा घर में देवी आई है, तू देवी बोला कर। फिर चलते चलते जब हर साल रक्षा बंधन आता है तो राखी बांधे, याद रख ए देवी है। तो आज तक ऐसा ही है। फिर कंजके आती हैं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं कंजके क्या होती हैं? नवरात्रे होती हैं, नवरात्रे कंजके, तो वहाँ पैर धोने पड़ते हैं बहन के। ओके, पैर धोते हैं, देवी आई है।
तो अब ये ऐसा हो गया है कि बहन मतलब देवी और भाई मतलब राक्षस। तो ऐसा हो गया। तो वो आप मानते हैं, मानना ही पड़ता है, क्या कर नहीं, सकते हैं? वो क्या है कि आपकी बचपन से आपको इतनी बार कहा गया आपके अंदर घुस चुका है और इतना घुस चुका है कि जिंदगी में कुछ भी आसपास अच्छा होता है तो देवी की वजह से हुआ है। तो बस यही है, मतलब यही एक भाई बहन का जो रिश्ता है उसी हिसाब से है। तो मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए खास करके मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं फिल्म देखूँ मैं अपने सिस्टर के मैं चेहरा देखना चाहूँगा। एंड इट इज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई इतनी सारी फिल्में बनाई, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म है ये। Really? हाँ। Tell me about the pranks that were played on the set, because he is very popular for playing pranks on his co-stars in a movie में इतना मतलब भाई बहन वाला रिश्ता है, naughtiness and mischief भरा हुआ। मैंने प्रैंक नहीं, बल्कि इनको मैंने प्रैंक नहीं खेला, मैं तो इनको खाना खिलाया है। मैं तो घर से खाना बना के इनको रोज खाना लेके आता था इनके लिए घर से। अच्छा, टेल मी कि शुरू से अब तक, ऑफ कोर्स लास्ट डे में तो और इतने बीच में शूट करते करते बहुत फेमिलियर हो गए और फ्रेंडली हो गए एंड एवरीथिंग, बट शुरू में वो प्रेशर फील हो रहा था अक्षय सर के साथ शूट करने वाले हैं, कोई लाइक परफॉर्मेंस? आई वॉज द फर्स्ट वन जिसको बुलाया बहनों में, तो आनंद सर ने कहा कि खाना बाद में खाना, आओ। तो मेरे को था मेरी पहली बारी क्यों आ रही है कोई और आ जाए तो मैं थोड़ा सा लाइट फील करती। और मैंने इनको बताया कि माई डैड इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, और आई गेस मैं इस मूवी के थ्रू उन्हीं का ड्रीम पूरा कर रही हूँ, एंड दैट वाज अ मोमेंट टू ऑलवेज चेरिश। Smriti, did you feel any sort of pressure when you started working? I'll not say pressure, but I mean, of course, you just see him entering, you'll see that aura, वो 8D का aura ऐसा लग के आता है। So even वो जब बस एंटर करते हैं, मजा आया ना? मजा आया, थोड़े धीरे आया, मजा धीरे आया। कैसे मतलब? नहीं सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही सबको हंसाया खिलाया। नहीं, आपने अपना काम अच्छे तो फिर और क्या? डराया बिल्कुल नहीं, डरा है इन्होंने नहीं, बट हमको थोड़ा सा लगता था बिकॉज देवर सीन्स जहाँ पे ना इनको ऐसे, क्योंकि भाई बहन है तो ऐसा कुछ रूली बिहेवियर या ऐसे धक्का देना होता था, तो मुझे लगता था सर लगी तो नहीं, आपको लगी तो नहीं। तेरा हाथ लगेगा। हाँ मुझे मतलब सो वो रहता था, बट देन इन्होंने बहुत ही एफर्टलेसली उस चीज़ को ट्राई किया कि हम लोग के बीच में वो जो एक बैरियर है वो आइस ब्रेक हो जाए। Would you like to live again the whole making of Yes, the film? yes, please. That's all. That's all I want. Yes. आपको आपका जवाब मिल गया। हमें तो जवाब मिल गया फॉर श्योर। कोई ऐसा सीन था मूवी का जो आपके मतलब यू आर होल्डिंग इट क्लोज टू योर हार्ट, यू स्टिल रिमेंबर इट, ये बेस्ट था हमने जो साथ में शूट किया? एक है छत पे है सीन जहाँ मैं रो रहा हूँ, ये भी आके मेरे साथ, वो ये लोग मुझे संभाल रहे हैं, रादर कि मैं इनको संभालूं, ये लोग हल्का सा पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये लोग मुझे संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा सीन है। Yeah. What is Raksha Bandhan to each one of you? An emotion. I think it is a pleasantly beautiful experience that we will all, I can say for these girls also, will be cherishing for the rest of our lives. मैं इतना बता देता हूँ, मुझे नहीं पता इस फिल्म का बिजनेस क्या होगा बेटा, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये फिल्म इट्स गोइंग टू बी अ कल्ट फिल्म। ओके, ये दिस फिल्म, अब इसका बिजनेस मैं नहीं जानता, चाहे हिट हो फ्लॉप हो भगवान जानता है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ, यू विल बी फॉर एवर प्राउड ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज मैंने ये फिल्म देखी है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे, यू कैन शो दिस फिल्म प्राउडली, यू कैन शो दिस फिल्म टू देम। Well, great. Wish you all the very Thank you best very for the much. movie. Thank We're you. sure it's going to be great and we can't wait to watch it. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us here. Good things come in small packages. Well, I don't agree to this at all, and I'll tell you why after this short break. Stay connected. Thank you for joining us back. Our guest today is a well-built man standing very tall at approximately 7 feet 1 inch and a fan base that is much taller than him. Ever since his remarkable debut in WWE, the great Khali has become an icon who is loved and revered by everyone in the country.
To know what this trailblazer in Indian professional wrestling is up to these days, join me as I speak to him. So good to have you with us, the great Khali. It's such a pleasure. Thank you for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you so much. सर सबसे पहले तो मैं इस बात पे आऊँगी आपके नाम पे। आपका नाम द ग्रेट खली, खली कैसे पड़ा? या ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भी आपका नाम कैसे पड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इससे जोड़ते हैं, लेकिन जो उनके लिए क्या है कि प्रोनाउंस करने के लिए बहुत इजी है द ग्रेट खाली, सो इसलिए उन्होंने नाम दिया ये। और हर जितने भी रेसलर आप देखते हैं, जितने भी रेसलर है उनका सबका नाम डिफरेंट है। ओरिजिनल नाम अलग है, चाहे केन है, चाहे बिग शो है, चाहे ट्रिपल एज है, बिल्कुल तो ओरिजिनल नाम उनका डिफरेंट है। तो हर कैरेक्टर को एक नाम देते हो और जिस पे उनका अपना राइट होता है उस पर, क्योंकि उन्हें मर्चेंडाइज बेचनी होती है, बहुत सारी चीज़ें बेचनी होती है, तो उनका उस पर राइट रखते हो अपना नाम दे के। आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप हिमाचल के एक छोटे शहर से आए थे, लेकिन आज आपको पूरी दुनिया जानती है और आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, पर आप आगे बढ़े हो। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में। बिल्कुल, मेरी बैकग्राउंड है, हिमाचल से बिलोंग करता हूँ मैं, और 94 पे मैं पंजाब पे आया था और पंजाब पे मैं पंजाब पुलिस की जॉब करी मैंने, और 2000 पे मैं WWE में गया। जब लोगों ने थोड़ा मेरे को जाना तो पहले मैं उससे पहले बॉडी बिल्डिंग करता था मैं, जब पंजाब पुलिस पे आया तो बॉडी बिल्डिंग करता था मैं, और मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर पंजाब रहा मैं। तो 2000 पे मैं गया स्पेशली WWE की ट्रेनिंग लेने अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पर ट्रेनिंग ली और मैंने 4 साल जापान पे लगाए। बहुत टफ टाइम था, और उसके बाद फिर कुछ मूवियाँ करी, जैसे लॉन्गेस्ट यार्ड है, तो 2006 पे मैं WWE में आया, डेब्यू हुआ था मेरा 2006 में। तो उसके बाद तो फिर सब लोगों ने देखा जो भी मतलब, बिल्कुल। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, उसके बाद तो सब लोगों ने जाना ही। फिर उसके बाद तो, और मेन चीज़ तो ये है कि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, और 94 पे मैं पंजाब पे आया था। पंजाब पे मैंने जॉब करी मैंने, उसके बाद मैं वहाँ से गया मैंने। आपने एक्टिंग भी ट्राई की है? एक्चुअली एक्टिंग मैंने कभी ट्राई नहीं की। ये तो मेरे को जैसे बोलते ना, एक ऐसे रोल मिल गए, मिल गया है। मतलब ये नहीं, मतलब मैं एक्टिंग का एक्चुअली बेसिकली मैं फैन, मजा आ रहा? मतलब फैन नहीं हूँ मैं, मतलब अच्छा। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई एक्टिंग में उतनी अच्छी नहीं कर पाऊँगा, और मेरे को एक जुनून था, जैसे होता ना, शुरू से जो माइंड सेट होता कि मैं रेसलर बनना है, रेसलर बनना है, तो कभी एक्टिंग को ध्यान नहीं दिया। तो मैंने मूवी के लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, ट्री ऑफ द लाइफ, मतलब ऐसे मैक ग्रूवर, काफ़ी मतलब मूवी करी है, पर कभी मेरे को उतना ये नहीं था कि यार मैंने एक्सप्लोर काम करना है, मैं कैलिफोर्निया रहना है, सैन फ्रांसिस्को रहना है, वहाँ पर यू नो लॉस एंजल्स पे रहूँगा तो ज़्यादा काम मिलेगा। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया मेरी चीज़ों पे, मैंने ध्यान दिया कि आज रेसलिंग पे ही मतलब फोकस रखा है अपना। वेरी नाइस। अच्छा, आज है पूरी दुनिया में जितने भी यंग एथलीट्स हैं वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनको मैं बताना चाहूँगा कि भी कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार्ड मेहनत करनी चाहिए, और उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे मैं अभी सोनू से बात कर रहा था, मैं सुबह में का आप हर रोज़ वर्कआउट करता है, तो बोलता है जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैंने कभी गैप नहीं डाला, कंटिन्यू करता हूँ। जैसे बहुत मतलब बहुत एक बड़ी बात है, मतलब बिल्कुल। हम मतलब मैं इनकी तो एक्टिंग का पूरा मतलब एक वो है, मतलब ना एक मेरा तो हैवी मतलब रेसलर है, फिर हम बहुत बार गैप कर लेते हैं। हाँ। कि भाई ट्रेवलिंग पे मिस होती है, कई रीज़न होते हैं, गैप कर ले, हाँ मैं मिस कर लेते हैं। सोनू से तो कभी मिस नहीं करता, बहुत बड़ी बात है, मतलब एक सीखने के लायक चीज़ है ये।
बिल्कुल। सो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। लोग टीके लगाते, इंजेक्शन लगाते हैं और थोड़े दिन पे फिर वो बॉडी बनाते हैं, फिर 6 महीने साल के अंदर फिर बोलते हैं इसका लीवर खराब हुआ, उसने छोड़ दिया, उसने हमने कुछ कर दिया। मतलब नेचुरली जितना भी करें वो नेचुरली जितना करें वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे आप लोग। सो सभी को मेरा यही मैसेज है कि भाई आप गिव अप नहीं करो और नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस रखो और एक दिन मतलब कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और नशे से दूर रहो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान पे, पंजाब पे नशा बहुत आ रहा है, उससे थोड़ा दूर रहो तो आप ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Time for me to say goodbye with a heavy heart. But the good news is that I will be back next Sunday, same place, same time on your favorite show, Zee Connect. Until then, stay connected with us through our social handles and do share with us your feedback because we always love to hear from you. Take care and I'll see you soon.